پورا شہر غیظ و غضب کے عالم میں تھا۔ صبح ہی سے دکانیں بند تھیں۔ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دیوانہ وار گلیوں میں نکل آئے۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں مل کر ایک بہت بڑا جلوس بنتا گیا۔ کوئی آنکھ نہ تھی جس سے انگارے نہ پھوٹ رہے ہوں، اور کوئی زبان ایسی نہ تھی جو نعروں کے شعلے اگل نہ رہی ہو۔ ایک نوجوان کسی کے کاندھے پر سوار ہو کر امریکہ کا لفظ منہ سے نکالتا اور ہزاروں افراد کا مجمع مرد آباد کہتا ہوا اپنی ایڑیوں پر اچھلنے لگتا۔ میں صرف چند سال کا تھا۔ اپنے والد کی انگلی پکڑے ایک دکان کے بند دروازے کے ساتھ کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہودیوں نے قبلہ اول بیت المقدس کو آگ لگا دی ہے۔ میں نے کتنے بوڑھوں کی آنکھیں اشک بار دیکھی اور کتنے جوانوں کے دل جہاد کے جذبے اور بدلے کی آگ میں ابلتے نظر آئے۔ یہ 80-60 کی دہائی کی بات ہے کہ سری نگر میں حضرت بل کی درگاہ سے موئے مبارک چوری ہو گئے تو پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہ تھا کہ اس کے بوڑھے، بچے، جوان آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر نہرو حکومت کے خلاف غم و غصہ لے کر سڑکوں پر نہ آ گئے ہوں۔ وہ قوم جس کے دل پوری امت کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ اقبال کے خواب نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر کی تعبیر تھی، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں اس وقت پاکستان کی عزت و تکریم ایسی تھی کہ جب 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو فضائی حملے کے خطرے کی وجہ سے رات کو مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کی روشنیاں بند کر دی گئیں تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کو روشن کرو، ابھی پاکستان اس دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ جنگ عظیم اول میں جب مسلمانوں نے اپنے ترک بھائیوں کا ساتھ دیا تو محبت کا رشتہ یوں قائم ہوا کہ آج بھی ترک قوم کسی پاکستانی کو دیکھ کر اس کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی ترک سے ملیں، خواہ حرم کے اندر یا ترکی کے بازاروں میں، بس تعارف کرانے کی دیر ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، اس کی آنکھوں میں محبت کا سلام امڑ آتا ہے۔ لیکن چند سال میں ہم اس قدر بدل جائیں گے کہ رملہ اور ہاشمیہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ روتی ہوئی عورتیں اور بچے اپنے پیاروں کی لاشوں، ٹوٹے ہوئے مکانات اور تباہ شدہ شہروں کے ساتھ روز میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے ہماری آنکھوں نے دیکھنے اور کانوں نے سننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا بے حسی ہوگی کہ لندن کے بازاروں میں ہزاروں افراد اسرائیل کے خلاف باہر نکل آئے، اور وہ سب مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مسلمان ممالک میں سے کسی سربراہ میں اور کسی بھی عوامی نمائندے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ ان کے خلاف بیان دے سکیں۔ جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک میں مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلم لوگوں نے
मुसलमानों के कत्लेआम पर मुजाहरे किए। मराकश में 10 लाख लोग इस जुल्म के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन गए। मिस्र और इसराइल के सरहद पर मिस्री कौम के लाखों बूढ़े, नौजवान, औरतें और बच्चे जमा हो गए कि ये सरहद खोलो और हमें अपने भाइयों की मदद को जाने दो। मलेशिया जैसे आज़ाद ख्याल मुल्क का लीडर महातीर मोहम्मद जिस जुर्रतमंद तरीके से इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोला, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन एक हम है कि ना हमारी आँख में आंसू हैं, न दिल में गमो गुस्सा। हमारे सियासतदानों के बयानात अपने मज़लूम भाइयों के ज़िक्र से खाली थे। हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के दफातर यूँ लगता है कि इन पर ताला लग चुका है, बल्कि ताले पर बेहसी की मकड़ी ने जाला बुन दिया था। हमारे एहसास शायर और अदीब खामोश थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको मुसलमानों की पहचान बता दूं? सहाबा इकराम रज़वान और अजमाइन ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से अगर कोई एक तकलीफ़ में होता है तो सारे भाई मुस्तरिब और परेशान हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 3 दर्जे हैं। अव्वल, अगर किसी बुराई को देखो तो हाथ से पकड़ कर रोक दो। दोम, नहीं इस्ताहत रखते तो जुबान से रोक दो। सोएम, अगर इतनी भी इस्ताहत नहीं रखते तो दिल में बुरा ज़रूर कहो, क्योंकि ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। इसके बाद फिर ईमान नहीं, बस कुफ्र ही है। आज जिस वक़्त ये वीडियो बनाई जा रही है, उस वक़्त अमेरिका ने ईरान के जनरल को इराक इस्लामी मुल्क के अंदर मिसाइल का निशाना बनाते हुए साथियों समेत शहीद कर दिया है। और पूरा ईरान इस वक्त सरापा एहतजाज बना हुआ है। वहाँ नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब उसी अंदाज में नारे लगा रहे हैं जैसा कभी बचपन में हमने देखा था कि जिस वक़्त बैतुल मुक़द्दस को आग लगाई गई तो अमेरिका के ख़िलाफ़ जिस तरह का जज्बा उन दिनों में पाया जाता था, आज पूरा ईरानी कौम में वही जज्बा नज़र आ रहा है। तुर्क के तैयब एर्दोगान और मलेशिया के महातीर मोहम्मद आज भी अपने मौक़िफ़ पे उस दिन की तरह डटे हुए हैं। लेकिन हम जिस पाकिस्तान का मुतल्लिक़ उस वक़्त ये कहा जाता था कि बैतुल्लाह की और मस्जिद नबवी की रोशनियाँ बहाल कर दो, उनकी रोशनियाँ ऑन कर दो, उनकी लाइटें जला दो, ताकि पता चले कि मुसलमान मुल्क पाकिस्तान अभी नक्शे पे मौजूद है। आज किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने और ना ही पाकिस्तान के किसी रहबर ने अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान दिया है। गुजरात और सरगोदा की सरहदों पर
एक कस्बा हुआ करता था जिसका नाम हरियाली है। इस कस्बा में अंग्रेज़ों ने पंजाब रेजिमेंट के इन सिपाहियों की याद में एक यादगार तमीर की है जो मुसलमान थे लेकिन अंग्रेज़ से वफादारी और नौकरी की खातिर उस सिपाह में शामिल हो गए थे जिन्होंने काबा पर गोलियां चलाई थीं। लेकिन मेरे बचपन में मुझे याद है कि हम इस मुकाम, इस जगह और इन लोगों से नफ़रत करते थे। गांव के लोग जिनके वो आबाओ-अजदाद थे वो भी इस यादगार पर अपना कूड़ा करकट फेंक कर आते थे। मुझे बचपन से कभी ऐसी मोहब्बत नहीं रही कि जैसे अक्सर लोगों को होती है कि इन्हें वापस लौट जाने की ख्वाहिश रहती है, क्योंकि मैंने बचपन बहुत मेहनत और मशक्क़त और मुश्किल में गुजारा है। लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से मेरा जी चाह रहा है कि मैं अपने बचपन में वापस लौट जाऊं, जहां एक फ़लस्तीनी के कत्ल पर पूरा पाकिस्तान जाग उठता था, एक कश्मीरी मुजाहिद मरता था, शहीद होता था, तो जगह जगह ग़ैबाना नमाज जनाजा मुनक्कद की जाती थी। लोग हरियाली के गांव से नफ़रत करते थे और लैला खालिद की तस्वीरें लगाते थे। कोई भी फर्द बाआवाज़ बुलंद ये कह सकता था, देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सच कहा था, मुसलमान ऐसे होते हैं, एक को तकलीफ पहुंचे तो सारे मुस्तरिब और परेशान। नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशिगर। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल द मैसेज टीवी के साथ जुड़े रहिए। उन तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में हमारी वीडियोस की बेहतरी के लिए अपनी राय से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। अपने मेज़बान खालिद बुखारी को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।